Assalamualaikum students. Student, this is the next part of the previous lecture of reported speech. So it is the further explanation of the previous lecture. I hope कि पिछले lecture में सारा cover हो गया था, but this is the further explanation that these are the main points, and you must say that this is the outline. अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे आउटलाइन बना के 1 to 1 कैसे एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप. व्हाट इज the first step is the introduction, that what is the direct speech and what is the reported speech. Then what is the structure? After the introducing the definitions, you must write or note the structures. Then comes the general changes, that what changes come when you convert the direct speech into the reported speech. What the tenses, back shift tenses, pronouns, adverbs, time, place. So these are some changes we had already discussed in the previous lecture. And what is reported statement, that how we made the reported questions, and how we made the reported commands and requests, and what are the reporting words, verbs which are used in the reporting. So this is the outline. You must explain this type of question in the steps. First introduction, then general changes, then reported statement, questions, command, questions, and reporting verbs. Let's start with the explanation of these. That first is the introductions. Whenever we want to repeat others people words, we have two options. जब भी हमें किसी भी पर्सन के वर्ड को हमें कॉपी करना हो या रिपीट करना हो तो हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं. या तो हम एज इट इज़ उसके वर्ड्स कन्वे कर दें, या हम अपने एडिशंस कुछ डाल के अपनी वर्डिंग में कन्वे करें. सो these are the two main options. Number one is repeating exactly word by word without any ambiguity, यानी कि आप डायरेक्ट उसे word to word convey कर दो. This is your the direct speech. Reporting approximately their speech, या होती उन्हीं की speech है but something with the addition of your language addition होती है तो वो आपकी reported speech बन जाती है. So this is the introduction of these definitions of direct and reported speech. For example, John said, "She made me laugh yesterday." This is the exactly word by word of the Joel. What comes the reported speech? Joy said that she had made him laugh the day before. So we add that after said, and she had made him. So there's additional changes in the sentences, and this is the difference between the direct speech and the reported speech. No matters which option we use, but we have to use the correct patterns. ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा पैटर्न यूज़ करो. डायरेक्ट स्पीच वर्ड टू वर्ड बताओ, या आप रिपोर्टेड स्पीच आप अप्रोक्सीमेटली देयर स्पीच बताओ, लेकिन यू हैव टू यूज़ द करेक्ट पैटर्न. जो डायरेक्ट स्पीच होती है, कीप इन माइंड बेटे, ये कोड फॉर्म में होती है, ये इन्वर्टेड कोमास में होती है. हमेशा जो रिपोर्टिंग क्लॉज होती है वो जो हम भी रिपोर्ट करें तो वो हमारी कोड फॉर्म में होती है, एग्जैक्ट वर्डिंग होती है, तभी हम इनमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो आपका लिंक होता है, यानी कि आप कोई भी उसके साथ रिपोर्टिंग क्लॉज लगा रहे. रिपोर्टिंग क्लॉज मीन जॉय सेड, उसके बाद आप एक लिंक देते हो दैट का, फिर आप उसके वर्ड बताते हो किसने बोला क्या था. लेकिन आप डायरेक्ट स्पीच में उसका रिपोर्टिंग क्लॉज ज़रूर बताते हो कि जॉय सेड, लेकिन आप कॉलन मार्क लगाते हो, फिर आप उसकी कोट बताते हो, यानी इन्वर्टेड कॉमास में से एग्जैक्ट वर्ड बताते हो. सो दिस इज़ योर करेक्ट पैटर्न, और यू कैन से दैट दिस इज़ द स्ट्रक्चर. रिपोर्टिंग क्लॉज, कॉलन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास. ये स्ट्रक्चर किसका है? डायरेक्ट स्पीच का. रिपोर्टिंग क्लॉज, कोई लिंक बनाना, एंड देन योर रिपोर्टेड कोड. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. ओके. Now, moreover, we have to keep the difference between the two oral languages and written languages. Yes, हमें बोलने में और लिखने में there is the hell of difference between the oral language and written language में. कैसे हम convert करते हैं डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में? ये डायरेक्ट स्पीच में हम प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन मार्क्स, कॉलन लगाते हैं, या हम कॉमा लगाते हैं, या हम फुल स्टॉप लगाते हैं, या हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं,
हम कुछ भी लगाते हैं, कंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे हम कांट यूज़ करते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, आई एम यूज़ करते हैं तो ऐसे अपोस्ट्रोफी लगाती है, इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं हम, जैसे लिसन, फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, दैट लुक ग्रेट। सो हम औरल में, बोलने में हम ये चीज़ें नहीं यूज़ करते, लेकिन आप जैसे ही रिटन फॉर्म में लगाते हो तो यू हैव टू यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंटरजेक्शंस। That structure. Yes, any reported speech must have three parts. So, अगर आपके short question आ सकता है कि what is the structure and how many parts the structure of reported speech consists of. So, there is three main part of the reported speech. Number one is the reporting clause, जो उसका first part होता है. For example, Joyce said, the person who speak asks an order. वो पर्सन जो बोल रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो कुछ भी पूछ रहा है, तो वो उसका कहना वो रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है. सो नंबर वन पार्ट इज़ द रिपोर्टिंग क्लॉज. नंबर टू पार्ट इज़ द लिंक, जो आप लिंक करते हो. फॉर एग्जांपल दैट आपने यूज़ लिखा था, इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. दैट लगाना है आपने, देन लगाना है आपने, इफ लगाना है. तो आप जो लिंक क्रिएट करते हो ना उसके क्लॉज में और जो उसकी कोटेशन में, उसके कहने में और उसके स्टेटमेंट में, उनके बीच का जो लिंक होता है, विच इज़ दैट. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट कम्स द थर्ड पार्ट, द रिपोर्टेड कोट. यस, शी हैड मेड हिम लाफ द डे बिफोर. ये अब उसकी कोटेशन थी, ये उसने बोला था, तो वो ये रिपोर्टेड कोट बन गई. नंबर वन इज द रिपोर्टिंग क्लॉज, then comes the link, and then the reporting report, and the third is the reported code. So these are the three parts of the reported speech. Yes, here and there I can miss this point, that when we discuss that there is a difference between an oral language and the written language. So direct speech must consist of the punctuation marks, contraction and interjections. But in reported speech, there is no punctuation, no contraction, and no oral interjections are used. So this is the difference. Whenever I asked you that what is the difference between the direct speech and reported speech, so this is the main difference. Yes. So these are the three main parts of the reported speech: the reporting clause, the link, and the reported code. Depending upon the type of sentences, each part will change as follows. Yes, this is an example that on depending upon the situation, how each part will change. For example, this is a statement. Reporting clause क्या होगी? She told, she said. So ये told, subject plus told, said, this is your reporting clause. Link क्या होगा? That. और reported clause कैसे बनाएंगे? She had, यानी subject, verb, object, him, कोई भी pronoun आप यूज़ करते हैं, and then laugh, जो उसका verb होता है, ये telling verb होता है, जो something उसके reported quote होता है, तो वो आपको इसका reported clause में आ जाएगा. अगर यही स्टेटमेंट आप एज अ क्वेश्चन फॉर्म में करते हो तो शी आस्क्ड, मैरी आस्क्ड यूज़ करोगे वर्ड, और जो लिंक होगा वो दैट नहीं होगा, वो आपका इफ़ बन जाएगा, ये वेदर बन जाएगा. ये अगर सेकंड ऑप्शन में आ रहा हो तो वो इसका WH वर्ड हो जाएगा, वेयर, व्हेन, हाउ, whether, whom. So in question base the link is changed, that is converted into if, whether and WH words. बाकी आपका रिपोर्टेड क्लॉज सेम स्ट्रक्चर का होता है. ठीक है. अगर आप यही सेंटेंसेस एज अ कमांड एंड क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपका ऐसे आ जाता है, मैरी आस्क्ड जॉय टू. सो योर लिंक इज चेंज इनटू टू. अब वो टू में चेंज हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कमांड में आपके सब्जेक्ट पहले, रिपोर्टेड क्लॉज का भी सब्जेक्ट यदि आपका हेयर पहले ही आ चुका है, जॉय पहले ही आ सके, तो रिपोर्टेड क्लॉज में अब आप सब्जेक्ट की एडिशन नहीं करोगे, बाकी एज इट इज़ आपका आएगा. ठीक है. वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन द रिपोर्टेड कोड. देन कम्स द सजेशन. सजेशन बेस्ड, शी, subject plus suggestion, she suggested. Again that is come as a link in the suggested based question. So in the reported clause,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही कुड बाय द प्रेजेंट, या आप आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो सजेशन में, जैसे मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हो या आप ऑन लगा देते हो, या किसी भी वर्ड के आगे आप ऑन लगा देते हो या इन्फिनेटिव यूज़ कर देते हो, तो कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो सजेशन फॉर्म में आपके आ जाते हैं। यस, टेंसेस बैक शिफ्ट कैसे होते हैं, यानी कि टेंसेस कैसे कन्वर्टेड होते हैं, अगर सिंस प्रेजेंट है तो वो कैसे पास्ट में होता है, तो ये बताती है व्हेन चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू द रिपोर्टेड स्पीच वी विल ऑलवेज गिव वन स्टेप बैक इन द टाइम। हम क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट, अगर आपकी प्रेजेंट की बात है ना, तो आप पास्ट में उसको बैक में करोगे, यानी आप पास्ट में ले जाओगे, यानी कि वन स्टेप बैक हो जाओगे, दैट इज, यानी कि आप प्रेजेंट है तो आप पास्ट में ले जाओगे, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे, एंड फ्रॉम फ्यूचर यू कैन कन्वर्टेड इनटू कंडीशनल में चले जाते हो, इफ वाले में चले जाते हो, वेदर वाले में क्वेश्चंस में चले जाते हो। सो सिंपल प्रेजेंट अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आपके हैं तो वो रिपोर्टेड में आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट ही रह सकता है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, एंड व्हेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। तो कैसे चेंजेस आएगी, विल इज चेंजेस टू वुड, कैन, कुड, मस्ट, हैड टू, मे, माइट, would is converted to would, should and could is could. So watch out our modal verb, they do not change given that they do not talk about time about mood। आपने नोट किया would नहीं चेंज हुआ, should नहीं चेंज हुआ, could नहीं चेंज हुआ, ought to नहीं चेंज हुआ, so this type of, there is a list of modals which they do not change, and they do not change their tenses too। Furthermore, it is necessary to make changes in personal references, that is pronoun। जी, pronouns में भी changes आ जाती हैं, there is no fixed rule but we can do the following। So pronouns में कैसे changes आती है, there is any reference in the reporting speech, we will do the changes according to Mary told John। अब जो मैरी है वो कन्वर्ट होगी शी में, प्रोनाउन में, और जो जॉन है वो हिज सिस्टर में चेंज हो गया। सो जो आपके नाउन्स थे दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोनाउंस, ये शिफ्ट आया आपने। इफ देयर इज नॉट एनी रेफरेंस, ये तो आपका रेफरेंस था लेकिन अभी आपका कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो वी कैन फॉलो दीज चेंजेस। आई एंड वी इज कन्वर्टेड इनटू यू, you is converted into I and we, he, she, it, they, must। Yes, these are the pronouns that are we converted। Me and us are converted into you, you is converted into me and us, and you can also add him, her, it, them। Is yours, your is my, yours, his, her, it, their। So there, if there is no any such reference, we can follow these changes। I do not know your sister, she said that she do not know your sister। So आपको जब नहीं पता होता तो you can add by yourself according to the situation and the type of tenses। Finally, we must also consider the information about time and place। yes, जब आपने person यानी कि आपके persons change कैसे हो सकते हैं, तो इस तरह time और place कैसे change हो सकते हैं, because there is also a backshift in their proximal and distal connotations, यानी कि उनके टाइम और प्लेस मैनर्स भी चेंज होते हैं। टाइम एडवर्ब्स, time adverb backshifts consider as a concept of present into past, past into indefinite past, and future into indefinite future। yes, अब टाइम कैसे चेंज हो गया, नाउ अगर यूज़ कर रहे हो तो वो देन में चेंज हो जाएगा, टुडे कर रहे हो तो वो येस्टरडे में, येस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट, आफ्टर एंड फॉलोइंग, द पास्ट वीक द वीक बिफोर, टुनाइट दैट नाइट, वन डे अगो द डे बिफोर। So this is the change in the time। Now how the places adverbs backshift taking into account, here, here, this place, that place, these, those। So there are some changes, and so
The first thing you must do when you want to rewrite a statement into reported speech is the three parts. जब भी आप change करते हो किसी भी direct speech को indirect और reported speech में, तो आपने तीन चीज़ें change करनी होती है. Reported clause change करना होता है, link and the reported code. John कहता है I am going to visit your parents. तो आप reported clause कैसे बनाओगे? John said. लिंक क्या लिखोगे? दैट. और कोड क्या बनाओगे? ही वॉज गोइंग टू विजिट आवर पेरेंट्स. योर अवर में चेंज हो गया. आई एम गोइंग दैट ही वॉज गोइंग, वो प्रेजेंट था, ये पास्ट में बात हुई. दैट लिंक आ गया, जॉन सैड हो गया. देन look for all, I say all the element which you are going to change. pronoun, verbs and adverbs कैसे change करते हो? When the reported speech is present, future or present perfect, do not change the verb. Keep in mind, जब भी आप verbs यूज़ present की बात करते हो या future की या present perfect की बात करते हो तो आप verbs को change नहीं करेंगे. For example, Mary says that I don't want to stay here. Mary says that she does not want to stay here. तो आपने कोई चेंज नहीं लेकर आए. शी डजंट want आप वर्ब में कोई चेंज लेकर आए. आप सेज ही रहने दिए, आप कोई चेंज नहीं लेकर आए. We also make no changes when we are reporting things that are still true. जब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जनरल बातें होती हैं, कुछ ट्रू बातें होती हैं, वो हम चेंज नहीं करते. For example, Mary कहती है I am only 28 and Mary said that she is only 28. So this statement is same as this. अगर वो भी प्रेजेंट की बात है तो दिस इज भी प्रेजेंट की बात है. ये भी अगर कोई परफेक्ट की बात हो रही है तो इधर भी परफेक्ट की ही बात हो रही है. डू दिस परफेक्ट दोनों में लग रहे हैं. सो देयर इज नो चेंज एट ऑल. Number third example is we only omit the link there in oral language. जब हम oral languages यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, हम omit कर देते हैं. That नहीं हम यूज़ करते हैं mostly. Therefore, it can happen that you find to there is the same sentence, the link there and a demonstrative pronoun there. अब क्या होता है कि आप यूज़ demonstrative pronouns होते हैं जब we have to show something that this is, that is the pen, that is the bird, that is the girl. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, वहाँ पे हम ये लिंक यूज़ करते हैं. अदरवाइज हम जब हम ऑरल लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं तो हम दैट को ओमिट कर देते हैं. Mary, this girl has some come today. Mary said that girl that come the day before. So we add both, or you can say that to that in the same sentence. औरल में तो हम बोलते नहीं है, लेकिन हम जब लिखने में बोलते हैं, जब भी कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है कि जब हमने किसी को पॉइंट आउट करना कि वो लड़की, दैट गर्ल, सो हम एक तो हम लिंक का दैट यूज़ करेंगे और दूसरा दैट हम उस डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि उसको पॉइंट आउट करने के लिए दैट यूज़ करेंगे. सो मैरी सेड दैट that girl had not come that day before. So डबल हम टू दैट इन द सेम सेंटेंस यूज होंगे. ठीक है आपके, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती हैं. Finally, just to clear up some tips about the reporting speech, that is the verb which introduce the reporting. The general rule is that reporting codes are introduced by yes. There are some tips about the reporting verbs. Told, said, statement, आस्क्ड, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं. यानी कि जब भी आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स आए, टोल्ड एडेड, फॉर एग्जांपल ही टोल्ड, ही सैड, तो वो एक स्टेटमेंट होती है. ठीक है. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाते हैं आस्क्ड वाले, तो वो आपके क्वेश्चन बेस्ड इंटरोगेटिव वाले होते हैं. कीप इन माइंड. और अगर आपके पास कोई भी ऐसे आ जाते हैं सैड टू, टोल्ड, आस्क्ड टू, तो वो इम्पेरेटिव आ जाते हैं. यानी कि यू हैव सम ऑफर्स, रिक्वेस्टेड, सजेशंस, तो वो इस टाइप के होते हैं. तो वो आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि किस कैटेगरी में आ जाते हैं. कोई स्टेटमेंट है आ रही है तो टोल्ड और सेट की कैटेगरी में आएगी. कोई क्वेश्चन आ रहा है
तो वो आपके लिंक को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट में आपका लिंक दैट था, पर क्वेश्चन डेट में आपका लिंक इफ हो गया, और इम्पेरेटिव जितने भी आते हैं उसमें आपका दैट नहीं यूज़ होता। ही आस्क्ड टू मी नॉट टू बी लेट, तो इसमें आपका लिंक यूज़ नहीं होता। तो आप क्वेश्चन और स्टेटमेंट देख के आप उसकी कैटेगरी या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ एवर देयर आर अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स विच ट्रांसमिट द स्पीकर्स इंटेंशंस और मूड। कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हम उसका स्पीकर्स का मूड पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, वो क्या कहना चाहता है। आइदर वो एग्री करता है किसी बात का, आंसर दे रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, डिनाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, इंसिस्ट, मेंशन, कुछ भी वो कर रहा होता है तो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच उसके इंटेंशन से पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल, ही कंप्लेन दैट ही हैड मेक इन ट्रबल, शी वॉन्डर्ड। इफ़, जहाँ पे इफ़ लग जाता है तो आपको फ़ौरन से पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बेस्ड है, जिसमें रिक्वेस्ट हो रही है या कोई वंडर हो रहा है। और जितने भी इम्पेरेटिव आ जाते हैं तो वो आपको पता चल जाता है कोई ऑफ़र है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई डिमांड है, कुछ भी, कोई वार्निंग है। ही एडवाइज मी नॉट टू, तो इसमें टू की एडिशन जैसे मैंने बता दिया कि कितने जितने भी इम्पेरेटिव होते हैं उसमें आप टू इन्फिनेटिव लगाते हो, तो ठीक है, आपको उससे पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी में आता है। दैट वाली कैटेगरी में आता है, इफ वाली कैटेगरी में आता है, या नॉट टू वाली कैटेगरी में आता है। So watch out the following reporting speech as they must be followed by to and ing. So they are following her reporting words. He advised her to go back to the dance. He offered to. The boys agreed to. Suggested finding. So इधर से आपको पता चल जाता है कि कैसे आपने कहाँ पे टू के साथ एडिशन वाले क्वेश्चन करने हैं या आपने आईएनजी के साथ लगाने हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, कहाँ पे आपको टू की एडिशन करनी है, कहाँ पे आपको आईएनजी के साथ एडिशन लगानी है। तो वो सिचुएशन होती है कि फॉर एग्जांपल, ही सजेस्टेड फाइंडिंग एन एजेंट, ही थैंक्ड हर फॉर कमिंग टू द ऑडिशंस, ही अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग। सो कुछ भी ऐसे वर्ड होते हैं तो आप सिचुएशन देख सकते हो कि किस पे आप टू लगाते हो, किस में आप आईएनजी लगाते हो। लेकिन कीप इन माइंड जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम ये टू और आईएनजी की एडिशन करते हैं। जितने भी जिसमें भी रिक्वेस्टेड होती है, ऑफर होती है, एडवाइस होती है, देखो आप जितने भी देखोगे, एडवाइस, ऑफर, एग्री, सजेस्टेड, थैंक, अपोलोजाइज, इन जितने भी इम्पेरेटिव क्वेश्चन होते हैं उनमें हम टू और आईएनजी की एडिशन करते हैं, ठीक है। So this is all about the explanation of reporting speech. सो ये आउटलाइन को अपने फॉलो करना है। आउटलाइन जब वन बाय वन आप आउटलाइन को फॉलो करके एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको बहुत ऑर्गेनाइज ऑथेंटिक सा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड दिस आउटलाइन इन योर माइंड, देन वन बाय वन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर भी डिटेल से बता दी, इसमें भी फर्दर डिटेल, इसमें स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने, फिर चेंजेस भी बता दिए और फर्दर भी चीज़ें बता दी। सो रिपोर्टेड स्पीच में मुझे नहीं लगता कि अब कोई बात समझ में है, लेकिन फिर भी आपको कम्पिटिटिव गौर से सुनिएगा ये सारा लेक्चर्स, और फिर मैं आपको इसके असाइनमेंट दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।